یا اللہ، پروفیسر کو ایسی ہٹلر بیوی دے جو ان کی ناک میں دم کر دے اور ان کے بچے اتنے شرارتی ہوں کہ پروفیسر زمان شاہ کے کپڑوں پر سوسو کر دیں اور انہیں یونی آنے کی فرصت ہی نہ ملے یا اللہ۔ معصومہ ابھی کچھ اور کہتی جب دھاڑ سے دروازہ کھلا تھا اور پروفیسر زمان شاہ کو اپنے سامنے دیکھ معصومہ کی سانسیں خشک ہوئی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پریئر روم کا اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے پوری یونی نے اس کی بکواس سنی تھی۔ ہوش سے اس کے تب اڑے جب پروفیسر کو اپنی طرف جارحانہ انداز میں بڑھتے دیکھا تھا۔ پروفیسر مجھے معاف کر دیں۔ وہ خوف سے کانپتی کھڑی ہوئی تھی جب زمان شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ یہ تو بکواس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شادی تو آج میری ہوگی اور وہ بھی تم سے۔ تیار ہو جاؤ میرے بچوں کی ماں بننے کے لیے۔ زمان کے سرد لفظ معصومہ کی جان نکال گئے تھے۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، تم سے ایک معمولی سا ٹیسٹ نہیں پاس کیا جا سکا۔ وہ اس پر غصے سے دھاڑا تھا جبکہ وہ اپنا سر نیچے کیے ہاتھ میں ٹیسٹ لیے اسے گھور رہی تھی۔ صرف 10% مارکس، کلاس کے نکمے سے نکمے بچوں سے بھی پیچھے رہ گئی ہو تم وہ ہو جو کچھوے کے ساتھ بھی ریس لگائے تو کچھوا ریس جیت جائے۔ پروفیسر کی اس بات پر پوری کلاس کے کہکہے کلاس روم میں گونجے تھے جبکہ وہ اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا گئی اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہہ کر ٹیسٹ پر گرنے لگے۔ پتہ نہیں کہاں رہتا ہے تمہارا دھیان جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں۔ تم جیسے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے میری پوری کلاس کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے کہ میری پوری کلاس اچھا نہیں پڑھتی۔ نکمے سے نکمے بچے کے بھی 40 سے 50% آئے ہیں کلاس میں اور تم 10% پر ہو۔ وہ ایک دفعہ پھر غصے سے دھاڑے تھے جبکہ پوری کلاس کی دبی۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز۔ تو آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ گونج رہی تھی۔ شٹ اپ کلاس۔ وہ ایک غضبناک نظر پوری کلاس پر ڈال کر دھاڑا تھا جس پر سب سہم گئے۔ جاؤ اپنی سیٹ پر بیٹھو، وہ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ وہ ایک نظر سب کے چہروں پر ڈالتی ہوئی شرمندہ سے اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اور میڈم، کب ارادہ ہے پھر کچھوے کے ساتھ ریس لگانے کا؟ ایک لڑکا اس کا مذاق اڑاتا ہوا ہنس کر بولا تو وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ تم اس کی باتوں کو نظر انداز کرو اور سر کی باتوں کو بھی۔ تمہیں پتہ تو ہے وہ پڑھائی کے معاملے میں کتنے سخت ہیں۔ فریال نے اسے دلاسا دیا۔ ہاں تو سارا غصہ مجھ پر ہی نکالیں گے کیا؟ ہاں 10% بھی تو لیا ہے نا، ورنہ تو میرا اگلا پیپر 5% پر آ جائے گا۔ وہ اپنی ہی بات پر چڑچڑی ہو گئی۔ اس کی معصومانہ بات پر ایک دفعہ پھر کلاس میں کہکہا گونجا اور وہ اپنی تعریف اپنے منہ سے کیے جانے پر سر جھکا گئی۔ کلاس ختم ہو جانے کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو وہ اٹھی اور پریئر روم کی طرف بڑھ گئی۔ کدھر جا رہی ہو معصومہ؟ فریال نے اسے اکیلا ایک طرف بڑھتے دیکھ کر پوچھا۔ پریئر روم میں جا رہی ہوں، نماز پڑھنی ہے اور اس پروفیسر کو بد دعائیں دینی ہیں۔ وہ باقی کا جملہ اپنے دل میں ہی کہہ کر مسکراتی ہوئی پریئر روم کی طرف بڑھ گئی۔ پریئر روم میں آتے ہی اس نے جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی صورت رونے والی بن گئی تھی۔ یا اللہ، وہ پروفیسر نہیں جلاد ہے، جلاد۔ ایک دفعہ بھی اس نے سوچا کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے؟ بھلا ایسا بھی کوئی پروفیسر ہوتا ہے؟ وہ غصے سے چیخ کر بولی تھی۔ کھلے ساؤنڈ کی طرح پوری یونیورسٹی میں گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کرے کھانا کھائیں تو پیٹ میں درد ہونے لگے ان کے۔ اس کی آواز پوری یونیورسٹی میں گونج رہی تھی کیونکہ وہاں لگا مائک غلطی سے آن کی وجہ سے پوری یونیورسٹی اس کی یہ بد دعائیں سن سکتی تھی۔ اس بات سے بالکل بے خبر وہ پریئر روم میں اپنی بد دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پھر بولی، اللہ کرے ان کو ایسی بیوی ملے جو روز پٹک پٹک کر مارے ان کو اور کھانا بھی نہ دے۔ بیوی بھی ان کی جیسی جلاد ہونی چاہیے یا اللہ۔ وہ انگلی آسمان کی طرف کھڑی کرتی ہوئی روتے ہوئے بولی۔ پھر اگلے ہی پل وہ سجدے میں گر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سجدے سے اٹھی اور ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ یا اللہ، پروفیسر کو ایسی ہٹلر بیوی دے جو ان کی ناک میں دم کر دے اور ان کے بچے اتنے شرارتی ہوں کہ پروفیسر زمان شاہ کے کپڑوں پر سوسو کر دیں اور انہیں یونیورسٹی آنے کی فرصت ہی نہ ملے یا اللہ۔ معصومہ بھی کچھ اور کہتی کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ سامنے پروفیسر زمان شاہ کو کھڑے دیکھ کر معصومہ کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پریئر روم کا اسپیکر آن ہونے کی وجہ سے وہ خوف سے کانپتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی زمان شاہ نے پہلے مائک آف کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ یہ بکواس کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شادی تو میری آج ہی ہوگی اور وہ بھی تم سے۔ تیار ہو جاؤ میرے بچوں کی ماں بننے کے لیے۔ زمان کے یہ سرد اور بھاری لفظ معصومہ کی جان نکال گئے تھے اور وہ اسے اپنے ساتھ لیے وہاں سے باہر کی جانب لپکا تھا۔ پوری یونین دونوں کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ہر پروفیسر اور ہر بچہ ہنس رہا تھا۔ اس ایک لڑکی کی وجہ سے اس کا پوری یونین میں مذاق بن گیا تھا۔ وہ پروفیسر جس کی موجودگی تمام لوگوں پر سختہ طاری کر دیتی تھی، اس ایک لڑکی کی وجہ سے آج وہ تماشا بن گیا تھا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں نا، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ کیوں چھوڑوں؟ تم نے میرا تماشا بنا دیا ہے لڑکی۔ وہ لوگ جو مجھے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے، آج وہ سب کھڑے یونیورسٹی میں مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ تمہیں اس کی سزا ملے گی، ضرور ملے گی، وہ غصے سے کہتا ہوا اسے کھینچ کر لایا تھا اور گاڑی میں دھکیلتے ہوئے اپنے فارم ہاؤس کی طرف بڑھ گیا۔
मोबाइल निकाल कर उसने किसी को कॉल लगाई। 2 मिनट के अंदर अंदर मुझे वकील, निकाह ख्वाह और गवाह मेरे फार्म हाउस पर चाहिए। उसने सामने वाली की बात सुने बगैर मोबाइल डैशबोर्ड पर दे मारा, जबकि उसके साथ बैठी मासूमा खौफ से घबराई हुई गाड़ी के दरवाजे के साथ लगकर बैठी उसे देख रही थी। उसकी इतनी छोटी सी गलती कि वो इतनी बड़ी सजा देने जा रहा था। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी छोटी सी गलती? छोटी सी गलती? तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी छोटी सी गलती है? तुमने मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत को एक पल में खाक में मिला दिया। क्या तुम्हारे लिए ये छोटी सी गलती है? वो मासूमा की बात पूरी होने से पहले ही धाड़ा। वो उसका गुस्सा देखकर सहम गई थी और आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। सर ऐसा ना करें, मैं एक यतीम हूँ। हाँ तो तुम्हें तो मेरे बच्चों में बहुत इंटरेस्ट था, मेरी बीवी में बहुत इंटरेस्ट था। तुम तो दुआ ही कर रही थी कि मेरी बीवी मुझे उठाकर पटके और मेरी नाक में दम करे। तो बनो ना मेरी बीवी और देखो, दिखाओ मुझे कि तुम कैसे मेरी नाक में दम करती हो और आखिर कैसे तुम मुझे उठाकर पटकती हो। वो गुस्से से कहता हुआ गाड़ी की रफ्तार बढ़ा चुका था। जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करती वो गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा देता। वो खामोशी से बस आंसू बहाने लगी थी और उसे अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने अपनी जुबान खोली ही क्यों थी। थोड़ी देर में वो फार्म हाउस पर पहुंचे और उसे अपने साथ घसीटता हुआ खामोश राहदारी से गुजरकर लाउंज में दाखिल हुआ। ये क्या कर रहे हो तुम जमान? आखिर क्यों तुम्हें इससे अचानक निकाह करना है? वहां मौजूद एक शख्स ने पूछा। तुम्हारी इन फजूल बातों का जवाब मेरे पास नहीं है, वो उसे गुस्से से कहता हुआ आगे बढ़ा था। उसने मासूमा को सोफे पर धकेला और खुद भी उसके पास ही बैठ गया। निकाह शुरू करवाएं मौलवी साहब, जमान ने कहा तो निकाह ख्वाह ने खामोशी से निकाह पढ़ाना शुरू किया। मासूमा ने रोते हुए सिसकते हुए उसको अपने निकाह में कबूल कर लिया था। निकाह हो जाने के बाद वो उन सब लोगों को रुखसत करता हुआ वापस मासूमा के पास आया, जो सोफे के एक कोने में सिमट कर बैठी थी और आंसू बहा रही थी। क्या हुआ बेगम? वो लफ्ज़ बेगम पर खासा जोर देता हुआ बोला और उसके करीब आया, जबकि वो उसके यूं करीब आने पर मजीद फासला कायम करने लगी। उसके फासला कायम करने पर वो सोफे पर उसके दाएं बाएं हाथ रखता हुआ उसके चेहरे पर झुका। एक हाथ से उसने उसके चेहरे को दबोच कर अपने मुकाबिल किया। नजरों का तसादम हुआ था। उसकी आंसुओं से भरी सुरमई आंखों को देखकर जमान शाह को एक पल के लिए अपना आप उनमें डूबता हुआ महसूस हुआ। उसे अपना दिल अपने काबू में नहीं लग रहा था। वो मासूमा की ख्वाब से बेतरतीब होती धड़कनों को भी अच्छे तरीके से महसूस कर सकता था। वो उसके चेहरे पर मजीद झुका और शिद्दत से उसके लबों को छुआ, जबकि मासूमा उसकी इस शिद्दत पर दिलो जान से कांप उठी थी। उसे अपना सांस लेना मुहाल लग रहा था। वो उसके सीने पर हाथ मारती हुई उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर जितनी वो मुजाहमत करती उसकी गिरफ्त में मजीद शिद्दत आ जाती। थोड़ी देर बाद जब वो मासूमा से अलग हुआ तो मासूमा के होंठ से खून आ रहा था। जमान के चेहरे पर एक तलख मुस्कुराहट आई और वो अंगूठे की पोर से उसके होंठ का खून साफ करता हुआ उसकी पेशानी से पेशानी टिका गया। क्या हुआ? तुम्हें तो ये देखना है ना कि मेरे बच्चे मुझे कितना जलील करते हैं। अब उसे हार मान गई। वो गुस्से से उसका चेहरा झटकता हुआ अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंक चुका था और खुद सर पीछे गिराए बैठ गया था। न जाने कल यूनिवर्सिटी में किस तरीके से वो बोलते बोलते खामोश हो गया। सर आखिर इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी आपने मुझे, मेरी एक गलती पर? गलती? तुम्हारे लिए ये लफ्ज़ इज्जत बहुत छोटा होगा लड़की, लेकिन मेरे लिए ये लफ्ज़ छोटा नहीं है। मेरी बरसों की बनाई हुई इज्जत को मैं यूँ खाक में मिलने नहीं देख सकता। अब तुम्हें लोग उन नज़रों से देखें जैसे मुझे देख रहे थे। लोग ये कहेंगे अपने ही प्रोफेसर को फंसा लिया। वो गुस्से से कहता हुआ उठा और अपने कमरे में जाकर बंद हो गया, जबकि वो उसके कहने का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी। वो वहीं बैठी रोती रही। जब रात के साए गहरे हुए तब भी वो वहीं यूं ही बैठी मुसलसल रो रही थी। कुछ देर बाद जमान कमरे से बाहर निकला और किचन का रुख किया। रो तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारा शौहर मर गया हो। निकाह होने पर लड़कियां रोती हैं, लेकिन इस कदर बुरे तरीके से भी नहीं रोती कि सामने वाला जिच हो जाए। जमान शाह लापरवाही से ये कहता हुआ अपने लिए कुछ बनाने में मसरूफ हो गया। आपको इससे क्या मतलब कि मैं रो रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ? वो दूसरी लड़कियां होती होंगी जो अपने निकाह पर थोड़ी देर रोकर खामोश हो जाती हैं। उनकी शादी आप जैसे जल्लाद से नहीं होती। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। जैसे ही लफ्ज़ जल्लाद जमान के कानों में पड़ा, उसकी आंखों के सामने एक बार फिर सुबह यूनिवर्सिटी में मौजूद स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के कहकहे गूंज गए। उसने गुस्से से आंखें उठाकर जैसे ही मासूमा की तरफ देखा, मासूमा को फौरन अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सहम कर पीछे हो गई और फिर से रोने लगी। जमान छुरी एक साइड पर रखता हुआ मासूमा के करीब आया था और वापस सोफे पर हाथ रखता हुआ उसके चेहरे पर झुका। मासूमा अपना चेहरा पीछे करने लगी, जबकि वो उसके होंठों पर लगे हुए जख्म को देखकर गहरा मुस्कुराया था। तुम तो बहुत नाजुक और कमज़ोर लड़की। वो एक बार फिर अपना मर्दाना हाथ उसके नाजुक लबों पर फेरता हुआ बोला, जबकि वो उसकी मायूस नज़रों को खुद पर महसूस करके खौफ और हया के मारे खुद में ही सिमट गई थी।
जाओ जाकर कपड़े चेंज करो, लेकिन पहले बाहर गार्ड से अपने बैग्स ले लेना, और याद रखो अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैंने गार्ड्स को साफ कह रखा है कि अगर तुम मेरे बगैर घर से बाहर कदम भी रखो तो तुम्हें वहीं गोली मार दी जाए। बाकी पुलिस की कार्रवाई जो भी होगी वो मैं खुद देख लूँगा। उसने जैसे ही कहा, मासूमा की रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ गई। वो फौरन बाहर की तरफ भागी। उसने खामोशी से शॉपिंग बैग्स उठाए और एक नज़र फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, बाहर खड़े गार्ड ने अपनी गन निकाल कर लोड कर ली। गार्ड के यूं गन लोड करने पर मासूमा का हलक बिल्कुल खुश्क हो गया। उसने खौफ से अपना थूक निगला और वापस अंदर की तरफ भागी। वो भागते हुए सीधी कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि उसकी ये फुर्ती देखकर जमान शाह के लबों पर एक गहरी और दिलकश मुस्कुराहट उभर आई। कुछ ही देर में खाना बनाने के बाद जमान ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मासूमा को कमरे में गए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन वो अब तक बाहर नहीं आई थी। आखिरकार वो खुद उठा और उसके कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के अंदर मासूमा अपनी ही एक खूबसूरत घेरदार फ्रॉक में उलझी हुई थी। वो अपनी कमर पर लगी जिप को बंद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने कभी ऐसे फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहने थे। वो हमेशा ढीली ढाली शर्ट्स और बैगी ट्राउजर्स पहना करती थी। उसने कभी इस डिज़ाइन के कपड़े नहीं पहने थे, और यही वजह थी कि वो उनमें बुरी तरह उलझ कर रह गई थी। ज़मान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उसके करीब आया। उसकी नज़र मासूमा की पुश्त पर पड़ी, जहाँ फ्राक की खुली जिप के पीछे उसकी गोरी दूधिया रंगत चमक रही थी, और उसकी मुलायम कमर पर बाएं जानिब एक छोटा सा दिलकश स्याह तिल मौजूद था, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। मासूमा बला की खूबसूरत लग रही थी। अचानक अपनी बरहना कमर पर जमान का तपता हुआ मर्दाना लम्स महसूस करके वो उछलकर उससे दूर हुई। क्या हुआ बेगम? अब तक तो तुम दुआएं किया करती थी कि मेरी बीवी मेरी नाक में दम करेगी, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर तो मुझे लग रहा है कि मैंने ही आपकी नाक में दम कर रखा है। उसने मासूमा की छोटी सी नाक को उंगलियों से हल्का सा दबाकर शरारत से कहा। जाएं बाहर, मैं आ रही हूँ। वो अपना दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द लपेटती हुई गुस्से से बोली, जबकि उसकी ये दूरी इख्तियार करने की हरकत जमान को सख्त नागवार गुजरी। उसने एक ही झटके से मासूमा के हाथ से दुपट्टा छीनकर बेड पर फेंका और उसे अपनी तरफ खींचता हुआ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। जमान ने अपनी गिरफ्त मजबूत की और गहरी भारी आवाज में बोला, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, तुम पर पूरा हक रखता हूँ, कानूनी तौर पर भी और शरई तौर पर भी। तुम यूं मुझसे अपना आप छुपा रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। वो जमान के रेंगते हुए हाथ अपनी कमर पर बखूबी महसूस कर सकती थी। मासूमा ने फौरन खौफ और घबराहट से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, जबकि जमान की नज़रें एक बार फिर उसके लाली लबों पर जा टिकी। उसने नरमी से मासूमा की ठोड़ी को ऊपर उठाया और उसके लबों पर एक नरम सा बोसा देता हुआ उसका रुख दूसरी तरफ फेर दिया। उसने मासूमा की पुश्त पर जाकर फ्रॉक की जिप बंद की और उसके कान के पास झुककर सरगोशी की। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे सारे ड्रेसेस मुझे अब ऐसे ही बनवाने चाहिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मासूमा गुस्से और झुंझलाहट से अपने होंठों को साफ करने लगी। जलाद इंसान, मुझे पता होता ना कि या अल्लाह मेरी दुआ मुझ पर ही उल्टी पड़ने वाली है तो यकीन करें मैं ऐसी दुआ कभी ना मांगती। वो रोते हुए बुड़बुड़ाई और अपना दुपट्टा सेट करते हुए कमरे से बाहर निकल आई। मासूमा ने उस वक्त पेस्टल मिंट ग्रीन कलर की एक इंतहाई खूबसूरत और नफीस फ्रॉक पहन रखी थी। इस हल्के रंग में उसका गोरा रंग मजीद खिल रहा था, और बिना किसी मेकअप के भी उसका मासूम और निखरा हुआ चेहरा किसी हूर जैसा लग रहा था। वो लाउंज में आई और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खामोशी से खाना खाने लगी। खाना खा लेने के बाद जमान ने खुद ही बर्तन उठाए, उन्हें किचन में रखा और वापस मासूमा के पास आया। वो अब भी यूं ही डाइनिंग टेबल पर गुमसुम बैठी थी। क्या पूरी रात यहीं बैठने का इरादा है? चलो, आज हमारा निकाह हुआ है और आज हमारी पहली रात है तो। वो अभी बोल ही रहा था कि मासूमा हैरत और सदमे से फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। स्टूडेंट हूँ मैं आपकी, आपको शर्म नहीं आएगी ये सब? वो बोलते बोलते झिझक कर रुक गई। जब मुझे तुम्हें किस करते वक्त शर्म नहीं आई तो मुझे वो सब करते हुए क्यों शर्म आएगी? और वैसे भी तुम देखना चाहती हो ना कि मेरे बच्चे मेरी नाक में दम कैसे करते हैं। यह कहते हुए उसने मासूमा को एक ही झटके में अपने मजबूत बाजू में भरा और कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मासूमा बुरी तरह तड़प कर अपना आप छुड़ाने की कोशिश करने लगी। देखें प्लीज़, मुझे माफ़ कर दें, ऐसी सज़ा ना दें मुझे, मुझे जाने दें प्लीज़। लेकिन वो उसकी किसी इल्तिजा पर कान धरे बगैर उसे अपने साथ कमरे में ले आया और बेड पर लिटा दिया। मासूमा के देखते ही देखते जमान ने अपनी शर्ट उतार कर दूर सोफे पर फेंक दी। जब मासूमा ने उसे शर्ट उतारते देखा तो वो जी जान से कांप उठी। जमान का जिस्म कसरती और बेहद खूबसूरत था। उसके चौड़े शाने, कसे हुए एब्स और परफेक्ट मर्दाना फिटनेस उसकी शख्सियत के रूप को मजीद बढ़ा रही थी। उसके पुरकशिश और कसरती जिस्म को देखकर मासूमा ने फौरन शर्म और खौफ के मारे अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। 5 मिनट गुजर गए, लेकिन उसे कमरे में कोई हरकत महसूस न हुई। जब उसने डरते डरते अपनी उंगलियों के दरमियान से आंखें खोलकर देखा तो जमान वहां मौजूद ही नहीं था। उसने एक गहरा और पुरसुकून सांस लिया। जलाद कहीं का, कितना अजीब है ये इंसान, अपने ही स्टूडेंट के साथ भला कोई। वो अभी आगे मजीद बोल ही रही थी कि उसने चौंक कर अपने बराबर में देखा।
ज़मान वहीं बेड पर तकिए पर कोहनी टिकाकर अपने हाथ की हथेली पर अपना चेहरा रखे इंतहाई सुकून से उसी को घूर रहा था। पकड़े जाने पर मासूमा ने ख्वाब से अपने दांतों की नुमाइश की और खामोशी से चेहरा फेर कर दूसरी तरफ लेट गई। ज़मान ने फ़ौरन उसकी इस हरकत पर उसे पीछे से अपनी तरफ खींचा। तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चलती है लड़की। उसने उसे मजबूती से खींचकर अपने सीने के करीब किया। उसने मासूमा की नाजुक कमर को अपने चौड़े और गर्म सीने से लगाया और उसके गिद्ध हिसार बांध गया था, जबकि वो बस खौफ से कांपती हुई अपनी आंखें मूंदे रही। उसे अपनी कमर पर मौजूद जिप खुलती हुई महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें मजीद भींच ली, मानो वो कभी आंखें खोलना ही ना चाहती हो। वो उसकी हालत से लुत्फानंदोज होता हुआ मुस्कुराया और उसका रुख अपनी तरफ करते हुए उसे अपने चौड़े सीने पर लेटाकर कमरे की लाइटें बंद कर गया। आज के लिए इतना ही नाक में दम काफ़ी है, बाकी का बात के लिए रखते हैं। उसने गहरी सरगोशी की, जबकि वो अंधेरे में उसकी गिरफ्त को महसूस करते हुए आंखें मूंदे रही। उसने अब कोई मुज़ाहमत न की थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने फिर मुज़ाहमत की तो यकीनन ये शख्स जो अगला कदम उठाएगा वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उसकी आंख तब खुली जब सूरज की कड़कती धूप उसके चेहरे पर आकर पड़ी। उसने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए जैसे ही खिड़की की तरफ देखा तो सामने ज़मान शाह शर्ट के बगैर खड़ा था। रात के अंधेरे में मासूमा को ज़मान के जिस्म की बनावट इतनी साफ वाज़ेह नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त सुबह की सुनहरी और तेज़ धूप सीधी ज़मान के कसरती जिस्म पर पड़ रही थी। धूप की किरणों से उसका गंदे और कसरती जिस्म चमक रहा था। उसके चौड़े शाने, सीने के उभार और परफेक्ट बॉडी कट्स उस कड़कती धूप में मजीद नुमायां होकर उसकी मर्दाना वजाहत को बेपनाह पुरकशिश बना रहे थे। वो अब उसे बखूबी देख सकती थी। मासूमा ने फौरन शर्म के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर गई। वो बेड से उठी और सामने पड़े शॉपिंग बैग्स में से एक बैग उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई। ज़मान उसकी ये फुर्ती देख चुका था। उसे वॉशरूम में गए 30 मिनट हो चुके थे, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं निकली थी। ज़मान गुस्से से वॉशरूम की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा पीटने लगा। क्या तुम वॉशरूम में सो गई हो? पूरी ज़िंदगी यहीं बसर करने का इरादा है? यूनिवर्सिटी जाना है? वो गुस्से से बोला। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, वो अंदर से गुस्से से बोली, जबकि ज़मान हैरत से दरवाजे को देखने लगा। इस सूट अगर इसी तरीके से बाहर आ गई तो यकीनन आप फिर से मेरे साथ चिपकने की कोशिश करेंगे। ज़मान शाह ने गुस्से से अपनी अच्छा, तो एक सवाल है, क्या मासूमा का फ़ैसला जो है उस पर वो पछताएगी या फिर कायम रहेगी? और मासूमा की हकीकत जानने के बाद सर का गुस्सा 7वें आसमान पे तो नहीं पहुंचने वाला? आखिर होने क्या वाला है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मुट्ठी बंद करके दरवाजे की तरफ इशारा किया, लेकिन अगले ही पल कुछ सोचकर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और आसपास देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने बेड के पास बने साइड टेबल के दराज से चाबी निकाली और वॉशरूम का दरवाज़ा अनलॉक करके अंदर दाखिल हो गया। मासूमा सामने ही आईने के आगे अपनी फ्रॉक की पुश्त पर लगी डोरियों से उलझी खड़ी थी। ज़मान को अचानक ही अपने सामने पाकर वो एक दफ़ा फिर रोती सूरत बना गई, जबकि वो उसकी हालत से महफूज होता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। मैं हूँ ना तुम्हारी नाक में दम करने के लिए? वो एक बार फिर उसकी छोटी सी नाक को उंगली से दबाता हुआ बोला और उसके बिल्कुल करीब आ गया। नरमी से उसने मासूमा की कमर पर मौजूद उस दिलकश स्याह तिल को छुआ और फिर महारत से फ्रॉक की डोरियां बांधकर उस तिल पर अपने लब रख दिए। मासूमा के बदन में एक सनसनी दौड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ कहती, ज़मान ने उसे वॉशरूम से बाहर धकेल दिया। मेरे लिए कपड़े निकालो। वो ये कहकर उसके मुंह पर वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर गया, जबकि मासूमा ने गुस्से से हाथ का मुक्का बनाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया, मानो वो उसकी जान लेने के लिए तैयार खड़ी हो। थोड़ी देर में फ्रेश होने के बाद दोनों ने साथ नाश्ता किया और एक ही गाड़ी में यूनिवर्सिटी के लिए निकले। क्या तुम ठीक हो? जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, फरियाल ने मासूमा को प्रोफेसर ज़मान शाह के साथ आते देखकर दौड़ते हुए पूछा। प्रोफेसर ने फरियाल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था और संजीदगी से आगे बढ़ गया था। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यूनिवर्सिटी का बताओ। अरे जो कल तुमने तमाशा लगाया था ना, वो बात प्रिंसिपल तक पहुँच गई है। शायद आज प्रोफेसर्स की एक अहम मीटिंग होगी और वहाँ तुम्हें भी बुलाया जाएगा। फरियाल ने झुककर धीमी आवाज़ में कहा तो मासूमा ने खौफ से अपना थूक निगला। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई। उसने रूहानी सूरत बनाकर कहा, चलो अल्लाह सब बेहतर करेगा, आओ क्लास में चलते हैं। फरियाल ने उसे हौसला दिया और अपने साथ ले गई। जबकि यूनिवर्सिटी में कल वाले वाक़े पर चारों तरफ चहमगोइयाँ हो रही थी। सब लोग एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रहे थे और हंस रहे थे। मासूमा को आज पहली बार एहसास हुआ था कि जब बात अपनी इज्जत पर आए तो कैसा महसूस होता है, और जब किसी का यूँ सबके सामने तमाशा बने तो दिल पर क्या गुजरती है। उसे अब समझ में आया था कि ज़मान शाह का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। सब लोग ज़मान शाह और उसके बारे में ही बातें बना रहे थे। किसी का कहना था कि ज़मान शाह और मासूमा के दरमियान पहले से कुछ चल रहा है, तभी तो मासूमा की इतनी हिम्मत हुई कि वो माइक पर इतना सब कुछ कह गई। और कल किस तरीके से प्रोफेसर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले गए थे। अपनी इज्जत पर यूँ उंगलियां उठते देखकर मासूमा दिल ही दिल में कुड़कर रह गई। वो कुछ कह ना सकती थी। सारा दिन क्लासें लेने के बाद बिलाखिर प्रिंसिपल ने मासूमा को कमेटी रूम में बुलवाया, जहाँ यूनिवर्सिटी के तमाम उस्ताद जमा थे।
वो डरती कांपती वहाँ गई और सर झुकाकर एक कोने में खड़ी हो गई। अब कुछ कहना चाहेंगी आप कल वाले वाक़े पर? प्रिंसिपल ने मासूमा की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा। क्या तुम्हारी नज़र में अपने प्रोफेसर्स की यही इज़्ज़त है? अगर तुम्हें किसी किस्म की शिकायत थी तो तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में आकर कहना चाहिए था, ना कि यूँ सरेआम अपने और अपने सर की इज़्ज़त को उछालना चाहिए था। वो गुस्से से धाड़े, जबकि मासूमा उनके गुस्से से सहम कर पीछे हुई। जो भी मसला था हम लोग आपस में सॉल्व कर चुके हैं सर। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से सबके सामने बुलाकर इसकी तजलील करना बेहतर या ठीक रहेगा। ज़मान शाह अचानक गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था। उसे हरगिज़ अच्छा नहीं लगा था कि यूँ प्रिंसिपल का सबके सामने मासूमा पर धाड़ना। प्रोफेसर ज़मान, ये आप दोनों का पर्सनल मामला नहीं था, अब ये पूरी यूनिवर्सिटी का मसला बन चुका है। आपको यूँ कल इसका हाथ पकड़ कर ले जाना, इसकी ये बेतुकी बकवास। इस सब पर यूनिवर्सिटी में लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि यहाँ प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के चक्कर चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो प्रोफेसर की बेइज्जती कर दें। आप जानते हैं हमारी रेपुटेशन कितनी ख़राब हुई है। जो भी हुआ है सर, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। बाकी की बात हम आपके पर्सनल ऑफिस में कर लेंगे। मेरे ख्याल से हमें अब चलना चाहिए। वो ये कहकर उठा और आगे बढ़कर सब प्रोफेसर्स के सामने मासूमा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से निकाल ले गया, जबकि प्रिंसिपल ने गहरा सांस भरकर वहाँ बैठे तमाम प्रोफेसर्स की तरफ देखा, जिन्होंने बेबसी से अपने कंधे उचका दिए। सर, आपको इस तरीके से मेरी साइड नहीं लेनी चाहिए थी, वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो गुस्से से कहता हुआ वापस उसका हाथ थामकर उसे गाड़ी की तरफ ले गया और गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बैठने से पहले ज़मान शाह ने एक गहरी नज़र दूर खड़े उस लड़के पर डाली जो चिपके से उनकी तस्वीर बना रहा था। वो वापस गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने फ़ौरन एक नंबर डायल किया। इंटरनेट से वो तमाम वीडियोज़ हट जानी चाहिए और फ़ाखिर सिकंदर के मोबाइल में जितनी भी वीडियोज़ और पिक्चर्स हैं वो तमाम अगले 2 मिनट में डिलीट हो जानी चाहिए। वो ये कहकर राब्ता मुनक़ता कर चुका था और मोबाइल डैशबोर्ड पर दे मारा, जबकि मासूमा हैरत और खामोशी से उसे देख रही थी। अब उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो आज सबकी नज़रों में अपने लिए और ज़मान शाह के लिए तहक़ीर तमस्खर देख चुकी थी, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर शदीद शर्मिंदा थी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग इस वाक़े को भूलने लगे थे। उन दोनों का निकाह हो चुका था, ये बात तो सिरे से ही पोशीदा थी। ज़मान शाह ने अपने असर और रसूख से बात संभाल ली थी और उसने यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की आँच मासूमा पर ना आने दी थी। क्या हुआ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? फरियाल ने कैंटीन में मासूमा को अकेले बैठे देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी, मासूमा ने मुस्कुराने की एक नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मैं देख रही हूँ कि उस वाक़े के बाद से तुम बहुत गुमसुम और खामोश रहने लगी हो। कुछ हुआ है क्या? और अब तुम हॉस्टल भी नहीं जा रही हो, आखिर कहाँ रह रही हो तुम? फरियाल के इस अचानक सवाल पर मासूमा ने चौंक कर उसे देखा और फिर आसपास नज़रें दौड़ाने लगी कि कहीं किसी ने यह बात सुन तो नहीं ली। फरियाल, हम इस बारे में अकेले में जाकर बात करते हैं। वो अपना बैग उठाकर खड़ी हुई और फरियाल को यूनिवर्सिटी के उस सुनसान हिस्से की तरफ ले गई जहाँ अमूमन कोई आता जाता नहीं था। जब वो दोनों वहाँ बैठ गईं तो मासूमा ने धीमी आवाज़ में बताया, मैं सर ज़मान शाह के घर में रह रही हूँ। क्या? तुम सर ज़मान शाह के घर में रह रही हो? फरियाल हैरत के मारे अपनी जगह से उछल पड़ी और चौंक कर उसकी बात दोहराई। मासूमा ने घबराकर फिर आसपास देखा और फ़ौरन फरियाल का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। हाँ, मैं प्रोफेसर ज़मान शाह के घर में रह रही हूँ। उस वाक़े के बाद सर ने गुस्से में आकर मुझसे निकाह कर लिया था। वो ये कहकर शर्म से सर झुका गई। उन्होंने तुमसे ज़बरदस्ती निकाह किया? बोलो मासूमा, तुमने ऐसे कैसे उनसे निकाह कर लिया? यह तो सरासर गैर कानूनी है। किसी के साथ ज़बरदस्ती करना जुर्म है। चलो हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और जाकर सर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। फरियाल जज्बाती होकर बोली तो मासूमा फ़ौरन घबरा गई और हड़बड़ाकर फरियाल का हाथ थाम लिया। नहीं नहीं फरियाल, ऐसा कुछ नहीं करना, बात कुछ और है। और सच कहूँ तो वो अब मुझे अच्छे लगने लगे हैं। उनका ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, वो गुस्से के बहुत तेज़ हैं और हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने जो मेरा नाक में दम कर रखा है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। वो एक खोए खोए से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। ओहो, तो तुम्हें मोहब्बत हो गई है सर ज़मान शाह से? फरियाल ने दिलचस्पी से अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर उस पर अपना चेहरा टिकाकर पूछा। हाँ, शायद कह सकती हो, वो शर्मा कर मुस्कुराई। उसी वक्त मासूमा का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखी तो उसके चेहरे पर अचानक ही घबराहट और शर्म के मिले जुले तासुरात आ गए। उसने फ़ौरन फ़ोन कान से लगाया। जी सर, मैं अभी आई, वो ये कहकर फ़ौरन खड़ी हो गई। फरियाल, अब मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो गई है। वो बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो हाथ उठाकर अल्लाह हाफ़िज़ का इशारा करती हुई वहाँ से तेज़ी से चली गई, जबकि फरियाल अपनी जगह से उठी। उसने एक गहरी नज़र अपने मोबाइल पर डाली और एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मासूमा के पीछे ही चल दी। कहाँ रह गई थी तुम? क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ जो यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँ? ज़मान शाह गुस्से से धाड़ा। मैं फरियाल के साथ थी, मासूमा ने धीरे से कहा। ज़मान शाह ने मज़ीद कुछ ना कहा और गाड़ी का लॉक खोला। मासूमा खामोशी से अंदर बैठ गई, जबकि ज़मान गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता हुआ खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का हल्का से एहसास हुआ था, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करता हुआ गाड़ी घर की तरफ बढ़ा गया।
काम हो गया, अब मैं देखती हूँ कि उसका ये इश्क यूनिवर्सिटी में कैसे चलता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी और हासिदाना मुस्कुराहट उभर आई। तभी पीछे से फाखिर आया। ओह, तो तुमने अपना काम कर दिखाया। फाखिर ने अपने चेहरे पर लगी चोट पर हाथ फेरते हुए कहा, कल उसने मासूमा और जमान शाह की वीडियो बनाई थी जिसकी सज़ा उसे जमान शाह से मार खाकर मिली थी, और इस बात पर वो जमान शाह से मज़ीद चिढ़ गया था कि उन्होंने उस पर हाथ कैसे उठाया। तुम अपने काम से काम रखो, उसने रूखेपन से कहा और आगे बढ़ने लगी, मगर फाखिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। तुम प्रोफेसर जमान शाह को पसंद करती हो ना? वो खबासत से हंसकर बोला। हाँ, करती हूँ, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि मुझ जैसी मॉडर्न और खूबसूरत लड़की को छोड़कर उन्होंने वो गंवार लड़की कैसे पसंद आ गई। उसने जलकर कहा। ओह, तो तुम ये सब कुछ इसीलिए कर रही हो? दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स में भी तुमने ही वो वीडियोस भेजी हैं ताकि वो वायरल हो सकें। हाँ, मैंने ही भेजी थी, और अभी तो मासूमा को मज़ीद जलील करना बाकी है। मोहब्बत हो गई है ना उसे ज़मान से। अब इस मोहब्बत को अगर मैंने मासूमा के लिए इबरत की सज़ा ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। वो गुस्से से कहकर अपना हाथ झटकती हुई वहाँ से चली गई, जबकि फाखिर उसके इस जुनून और हसद को देखकर तंजिया मुस्कुरा गया। वाह, अपने ही दोस्त को एक लड़के की खातिर बदनाम करने पर तुली है। ये तो हम लड़कों से भी आगे निकल गई। क्या लड़कियों की दोस्तियाँ ऐसी होती हैं? वो बुड़बुड़ाया। आज जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो हर तरफ से लोगों की हकारत आमेज़ नज़रें खुद पर महसूस कर रही थी। खुद को यूँ अजीब व गरीब और तमस्कर उड़ाती नज़रों के दरमियान पाकर वो सर झुकाए क्लास की तरफ बढ़ी, जहाँ उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक क्या हुआ है। लो जी, आ गई मैडम। तो गाइस, ये है वो लड़की जो अपने ही प्रोफेसर पर डोरे डालती रही, उनके साथ इश्क व मौज चलाती रही और आखिरकार उनकी बीवी बनकर बैठ गई। एक लड़की ने हाथ में मोबाइल उठाकर उसका मजाक बनाते हुए कहा और उसके करीब आई। मासूमा ने सदमे और हैरत से फरियाल की तरफ देखा जो उन्हीं लोगों के दरमियान खड़ी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी सच्ची दोस्त उसके साथ ऐसा घिनौना खेल खेल सकती है। वो जब से यूनिवर्सिटी आई थी फरियाल ही उसके साथ हुआ करती थी और उसे खुद से ज़्यादा फरियाल पर यकीन था, लेकिन उसी फरियाल ने आखिरकार उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया था। मासूमा ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से क्लासरूम से बाहर निकलने लगी, लेकिन क्लास के कुछ लड़कों ने मिलकर आगे बढ़कर क्लास का दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे अरे, हमें भी तो बताओ कि आखिर अंदर की बात क्या है। हमें भी तो पता चले कि ऐसे कौन से जादू के तीर चलाए हैं तुमने जिससे प्रोफेसर जमान शाह तुम्हारे पीछे ऐसे पागल हुए कि तुमसे निकाह ही कर लिया। यहाँ तक कि हमें तो ये भी मालूम हुआ है कि कल वो सब प्रोफेसर्स के सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर यहाँ से ले गए थे। वो लड़के उसके आसपास घूमते हुए तंज से बोले। अरे ऐसे नहीं बोलते कि हमारे प्रोफेसर की मोहतरमा बीवी हैं। ये बातें तो हमें खुद प्रोफेसर साहब से ही पूछनी चाहिए कि क्या हुआ है, क्यों, ठीक है ना? एक और लड़के ने मासूमा का हाथ दबोचते हुए बदतमीजी से कहा। मासूमा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। वो मुसलसल फरियाल को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी और वो अपने सीने पर हाथ बांधे खड़ी मासूमा का, मैं आस्तीन में सांप पाल कर बैठी हूँ तो मैं तुम्हें कभी अपने दिल का हाल ना बताती। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी ही है जो मैंने तुम जैसे इंसान पर यकीन किया। वह गुस्से और दुख से कहती हुई क्लासरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। यूनिवर्सिटी की राहदारियों में हर तरफ लोग उसे देखकर हकारत और तमस्कर से हंस रहे थे। वो रोती हुई अपनी आंखें साफ करती आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक और लड़की ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अरे, किधर जा रही हो? सीधा प्रोफेसर पर ही हाथ मार लिया। एक दफ़ा हम पर भी ट्राई कर लेती, हम भी तुम्हें खुश कर सकते थे। देखो, प्रोफेसर के साथ निकाह करके तुमने खुद पर कैसी बदनामी का दाग लगा लिया है। अगर मुझसे निकाह किया होता तो कोई कुछ भी ना कहता। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स के साथ ही अच्छे लगते हैं ना, और तुमने तो सीधा प्रोफेसर पर ही डाका डाल दिया। वो उसका मजाक उड़ाते हुए बदतमीजी की हदें पार कर रहा था। मासूमा ने साकत नज़रों से उसके हाथ को देखा जो उसकी कलाई थामे खड़ा था। आज तक इस यूनिवर्सिटी में किसी की इतनी हिम्मत ना हुई थी कि कोई उसे गलत नज़र से देख भी सके, लेकिन आज इस अफवाह की वजह से एक आम से लड़के ने उस पर हाथ डाल दिया था। वो गुस्से और तैश में आकर उसे ज़ोरदार धक्का देती हुई ऊपर टेरेस की तरफ भागी, जबकि वो लड़के भी उसके पीछे ही भागे। वो टेरेस पर आई और अंदर से दरवाज़ा बंद करके दीवार के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फरियाल, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुमने मेरा तमाशा बना दिया, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? वो रोते हुए चीखी। वो अपनी जगह से उठी और तैश में आकर टेरेस की दीवार पर जा खड़ी हुई। नीचे यूनिवर्सिटी के सहन में तमाम लोग जमा होकर ऊपर देख रहे थे। प्रोफेसर जमान शाह जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकले, तमाम स्टूडेंट्स को यूँ एक जगह इकट्ठा देखकर हैरत से बाहर आए। उन्होंने जैसे ही ऊपर छत की तरफ देखा, उनकी जान फना हो गई। मासूमा, वो पूरे जी जान से कांपे और बुलंद आवाज़ में चीखी। फरियाल भी दौड़ती हुई सहन में आकर खड़ी हुई तो उसने ऊपर दीवार पर खड़ी मासूमा को देखा। फरियाल, तुमने ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हें अपनी बहनों की तरह दोस्त माना था। मासूमा ऊपर से चीख कर बोली। जमान शाह ने कहर बरसाती नज़रों से फरियाल को देखा। उन्हें समझ आ गया था कि उस लड़की ने कोई बड़ा फितना खड़ा किया है, जिसकी वजह से मासूमा यूँ अपनी जान देने के लिए ऊपर खड़ी है। जमान शाह ने देखा कि टेरेस के दरवाजे के पास से कुछ लड़के भागकर नीचे आ रहे थे। उसने एक एक लड़के की पहचान कर ली, लेकिन इस वक्त उनके पास सजा देने का वक्त नहीं था। वो बिना कुछ सोचे समझे बिजली की सी तेज़ी से टेरेस की तरफ भागे और जाकर वहाँ का बंद दरवाज़ा तोड़ने लगे।
फरियाल, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। याद रखना, मेरी मौत की ज़िम्मेदार अब सिर्फ तुम हो। अब बनाओ वीडियोस तुम लोग। मैं सबके सामने कह रही हूँ कि मेरा निकाह हुआ था, हमने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन तुम लोगों की नज़रों में जो ये हक़ारत है, मैं अगर आज अपनी जान दे रही हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ इसी हक़ारत की वजह से। उसने रोते हुए चीख चीख कर कहा, जबकि नीचे खड़े स्टूडेंट्स अब भी उसकी वीडियो बना रहे थे। प्रिंसिपल साहब भी दौड़ते हुए ऑफिस से बाहर आ गए। मासूमा, देखो ये हरकत ठीक नहीं है, तुम ऐसा कोई कदम मत उठाओ, नीचे आ जाओ, मैं सब स्टूडेंट्स को समझाऊंगा, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेगा। जो भी मामलात हैं हम बैठकर हल करेंगे, प्रिंसिपल ने मासूमा को समझाते हुए कहा। नहीं, मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि आज मैं अपनी जान दे दूंगी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फरियाल की वजह से। सब लोग मुड़ मुड़ कर फरियाल को देखने लगे, जबकि फरियाल उन लोगों के दरमियान खड़ी खौफ और निदामत से रो रही थी। इससे पहले कि मासूमा वहाँ से नीचे छलांग लगा लेती, अचानक किसी ने पीछे से आकर इंतहाई मजबूती से उसे कमर से दबोचा और पीछे की तरफ खींच लिया। मासूमा तड़प कर उसकी गिरफ्त से अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी। पागल हो गई हो तुम? जमान शाह गुस्से से धाड़ा और उसे अपने चौड़े सीने से लगाए खड़ा हो गया, जबकि मासूमा उसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करती हुई हिचकियों से रोने लगी। जब नीचे खड़े स्टूडेंट्स ने देखा कि मासूमा को बचा लिया गया है तो वो सब भागते हुए टेरेस पर आ गए और प्रिंसिपल भी उनके पीछे ही पहुंचे। मासूमा जवान के सीने से लगी आवाज़ रो रही थी। ये क्या तरीका है प्रोफेसर? आपने कहा था कि आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आज ये सब कुछ क्या हो रहा है? प्रिंसिपल ने टेरेस पर आते ही गुस्से और घबराहट के मिले जुले तासुरात के साथ कहा। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, मैं अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं करना चाहता, उसने सर्द लहजे में कहा। फिर वहाँ मौजूद सब लोगों के सामने बिना किसी की परवाह किए मासूमा का रोता हुआ चेहरा अपने दोनों हाथों के प्यालों में लिया। इन चंद दिनों में वो लड़की जमान शाह के लिए बेहद ख़ास हो चुकी थी, और आज उसे यूँ रोता देखकर उनका अपना दिल पूरी तरह तकलीफ़ में मुब्तला हो गया था। मुझे बताओ मासूमा, क्या किया है फरियाल ने? उसने इंतहाई नरमी से पूछा। मासूमा ने सिसकते हुए उंगली से फरियाल की तरफ इशारा किया और कल से लेकर आज तक होने वाली सारी बात रोते हुए बता दी। प्रोफेसर जमान शाह ने मासूमा को दोबारा अपने सीने से लगा लिए, उसके आंसू साफ किए और उसकी पेशानी पर एक मोहब्बत भरा भरोसा दिया, और फिर वहाँ खड़े हर एक स्टूडेंट को कहर बरसाती नज़रों से देखने लगे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है प्रिंसिपल साहब के ये सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए, वो गुस्से से धाड़े थे। प्रिंसिपल फ़ौरन उसके सामने आया और हाथ जोड़ने वाले अंदाज में गिड़गिड़ाया। नहीं नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं स्टूडेंट को समझाऊंगा, प्लीज़ सर, आप ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा। इस तरीके से इन बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, इनकी पढ़ाई, इनका कैरियर सब ख़त्म हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। अब इन लोगों के साथ जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी ये खुद होंगे। इन लोगों की वजह से मेरी बीवी की आंखों में आंसू आए हैं और मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जारहाना अंदाज में कहते हुए मासूमा को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर वहाँ से निकल गए। वहाँ खड़े तमाम स्टूडेंट्स हैरत से प्रिंसिपल को देख रहे थे कि आखिर वो इस शख्स के सामने यूँ मिन्नतें क्यों कर रहे थे। वो तो यूनिवर्सिटी का एक मामूली सा प्रोफेसर ही था ना। उनके जाते ही प्रिंसिपल गुस्से से फरियाल पर धाड़े। किसने कहा था ये सब करने को? फरियाल, वो तुम पर इल्ज़ाम लगा रही है कि तुम्हारी वजह से वो अपनी जान देने जा रही थी। ये तुम्हारा इंजाम है, अब तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़कर दिखाओ मुझे। सब स्टूडेंट्स अभी भी हैरत ज़दा खड़े थे कि आखिर प्रिंसिपल एक मामूली से प्रोफेसर की धमकी से इस कदर क्यों डर गए। वो सब इस बात से बेखबर थे कि प्रोफेसर जमान शाह कोई आम इंसान नहीं थे। वो इस मुल्क की सबसे बाअसर, अमीर और ताकतवर तरीन कारोबारी शख्सियत के मालिक थे, जिनके एक इशारे पर यह पूरी यूनिवर्सिटी न सिर्फ बंद हो सकती थी, बल्कि वो एक मिनट में उन तमाम स्टूडेंट्स का कैरियर हमेशा के लिए तबाह करने की ताकत रखते थे। वो उस यूनिवर्सिटी के असल मालिक और सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, और यहाँ सिर्फ अपने शौक़ के लिए पढ़ाते थे। ये सच्चाई जैसे ही प्रिंसिपल के गुस्से से स्टूडेंट्स पर वाज़ह की, तमाम स्टूडेंट्स के चेहरों से हवाइयाँ उड़ गईं। खौफ की एक सर्द लहर सबके अंदर दौड़ गई। उन्होंने फ़ौरन अपने अपने मोबाइल निकाले और वह तमाम वीडियोस और तस्वीर उसी वक्त डिलीट करने लगे जो उन्होंने बनाई थी। कुछ स्टूडेंट्स घबराकर प्रिंसिपल के पास भागे। सर प्लीज़ हमें बचा लें, सर प्रोफेसर शाह से कहें कि हमें माफ़ कर दें, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमारे वालिदैन ने इतनी मुश्किलों से पेट काट कर हमें यहाँ पढ़ने भेजा है, हम इतने अमीर नहीं हैं सर। अगर हमारा कैरियर ख़राब हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वो रोहांसे होकर प्रिंसिपल के आगे गिड़गिड़ाने लगे। प्रिंसिपल ने एक गहरा सांस लिया और उनकी हालत देखकर कहा, ठीक है, मैं प्रोफेसर जमान से बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने गुस्से से फरियाल की तरफ देखा। फरियाल, तुम अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये कहकर प्रिंसिपल गुस्से और परेशानी में अपने ऑफिस की तरफ चल दिए। तमाम स्टूडेंट्स अब बुरी तरह घबरा चुके थे, लेकिन वहाँ खड़ी दो आंखें ऐसी थीं जो अब भी कहर आलूद और शदीद हसद भरी नज़रों से प्रोफेसर जमान शाह और मासूमा को जाते हुए देख रही थी, जिसके दिल में हसद की आग लगी हुई थी कि जो अहमियत, रुतबा और तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत जो उसे मिलनी थी वो एक आम सी मासूमा को मिल रही थी। तुम्हें रोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। वो मासूमा को अपनी बाहों में भरकर लाउंज से कमरे की तरफ लाया था। मासूमा मुसलसल रोए जा रही थी। फरियाल ने ऐसा क्यों किया आखिर उसने ऐसा? वो रोते हुए उसके सीने से लगकर बोली। मासूमा, बस चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारा ये रोना तकलीफ़ दे रहा है।
زمان شاہ نے محبت سے اس کے آنسو صاف کر کے کہا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ کچھ بھی نہیں سوچنا، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ پروفیسر نے مسکرا کر کہا تو وہ کچھ نہ کہہ سکی اور بس اس کے سینے پر سر ٹکائے خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ چند دن پروفیسر نے خود بھی یونیورسٹی کا رخ نہ کیا اور نہ ہی معصومہ کو جانے دیا۔ آج وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ باہر ہوتی بارش کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ یہ اس کا پسندیدہ موسم تھا۔ ہمیشہ بارش میں وہ یوں ہی خوش رہا کرتی تھی۔ اس موسم کا اس پر خاصا مثبت اثر پڑا تھا، جس سے اس کی حالت میں کافی سدھار آیا تھا اور کچھ پروفیسر زمان شاہ کی محبت اور محنت کا نتیجہ تھا۔ اور واقعی معصومہ نے زمان شاہ کو عملی طور پر بتا دیا تھا کہ ناک میں دم کرنا کسے کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ عجیب و غریب خواہشات کیا کرتی تھی۔ کبھی وہ زمان شاہ کا میک اپ کرنے بیٹھ جایا کرتی تو کبھی زبردستی ان کے ناخنوں پر نیل پینٹ لگا دیتی، کبھی وہ انہیں اپنے ہی دوپٹے اور کپڑے پہنا کر ان کے ساتھ مضحکہ خیز تصویریں بناتی۔ پروفیسر زمان شاہ اس کی ذہنی حالت کا احساس کرتے ہوئے اسے کسی بھی چیز سے منع نہیں کر پاتے تھے۔ وہ گیلری میں کھڑی بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھ پر سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں زمان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی کمرے میں پھیلی ایک سستی اور اجنبی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو وہاں زمان شاہ نہیں تھا۔ وہاں سامنے کھڑے فاخر کو دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، فاخر نے بے رحمی سے اس کے سر پر پاس پڑا گلدان دے مارا۔ گلدان لگتے ہی اگلے ہی پل معصومہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر گئی۔ فاخر آگے بڑھا، موبائل نکال کر کان سے لگایا اور بولا، کام ہو گیا تمہارا، پیسے تیار رکھو۔ اس نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کیا اور معصومہ کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور خاموشی سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب زمان شاہ فارم ہاؤس واپس آیا تو معصومہ کو کمرے میں نہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا۔ اس نے معصومہ کو ایک خوبصورت لاکٹ گفٹ کیا تھا جس میں ایک خفیہ جی پی ایس ٹریکر لگا ہوا تھا تاکہ وہ ہمیشہ اس کی لوکیشن ٹریس کر سکے۔ زمان نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور لوکیشن ٹریس کرنے لگا۔ لوکیشن ملتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ بجلی کی تیزی سے اس ٹھکانے کی طرف بڑھ گیا۔ فاخر معصومہ کو اغوا کر کے ایک سنسان گودام میں اس لڑکی کے پاس لے گیا تھا۔ اس نے فاخر کو طے شدہ رقم دی جسے لے کر فاخر وہاں سے چلا گیا۔ معصومہ کو ایک کرسی پر رسیوں سے مضبوطی سے باندھا گیا تھا۔ جیسے ہی معصومہ کی آنکھ کھلی اور اس کے ہوش بحال ہوئے، اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ شدید پریشان اور حیران رہ گئی۔ کون ہو تم؟ معصومہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ حسد کی آگ میں جلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ تم نے پروفیسر کو مجھ سے چھین دیا۔ وہ محبت، وہ رتبہ اور وہ اہمیت جو اس یونیورسٹی میں مجھے ملنے چاہیے تھی وہ تمہیں مل رہی ہے۔ میں تمہاری جان لے لوں گی معصومہ، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پروفیسر تمہارے قریب آیا ہے یا نہیں۔ فریال کی اس بے باک اور گھٹیا بات پر معصومہ غصے سے تل ملا اٹھی۔ اسے شدید طیش آیا کہ کوئی دوسری لڑکی اس کے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے فریال کو مزید جلانے اور غصہ دلانے کے لیے اپنے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائی اور فخر سے بولی، ہاں وہ میرے قریب آئے ہیں اور میں پروفیسر زمان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ غصے اور حسد سے مسخ ہو گیا۔ اس نے وہاں کھڑے گارڈز کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولی، تم لوگوں کو میں یہ جسم آج رات کے لیے دے رہی ہوں، جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھو اس کا بچہ نہیں بچنا چاہیے۔ اس کا یہ سن کر گارڈ بدنیتی سے مسکراتے ہوئے معصومہ کی طرف بڑھنے لگے۔ معصومہ کا دل خوف سے ڈوبنے لگا، لیکن اچانک ہر طرف پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ پورا گودام پولیس کی گاڑیوں کی روشنی اور سائرن سے گونج اٹھا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی اور اس کے گارڈز گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ معصومہ کے لبوں پر ایک زوردار قہقہا ابھرا۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فخر سے کہا، دیکھا، مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، نہ مجھے اور نہ ہی اپنے بچے کو۔ معصومہ کا یہ آخری جملہ پروفیسر زمان شاہ گودام کے اندر داخل ہوتے ہوئے سن چکے تھے، اور اس ماحول میں بھی اپنی معصوم بیوی کے منہ سے یہ اعتراف سن کر زمان شاہ کے چہرے پر ایک خوبصورت اور دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ زمان شاہ نے ایک نظر سامنے کرسی پر بندی معصومہ پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور پھر ان کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی جو معصومہ کے سامنے کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہینڈز اپ! انسپکٹر کی گرجدار آواز گونجی تو گارڈز نے فوراً اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ زمان شاہ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ اس کا پورا وجود غصے سے تپ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کا چہرہ جھٹکے سے اپنی طرف کیا جو اب تک منہ پر نقاب ڈالے کھڑی تھی۔ زمان شاہ نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ نینا! زمان شاہ کے لبوں سے نفرت آمیز لفظ نکلا۔ زمان پلیز میری بات سنیں۔ نینا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن زمان شاہ نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ معصومہ حیرت سے کبھی نینا کو تو کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ نینا کوئی اور نہیں بلکہ اس دور کی لڑکی تھی جب زمان شاہ یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے ایک نامور اکیڈمی اور اسکول میں پڑھایا کرتے تھے۔ نینا وہاں ان کی اسٹوڈنٹ تھی اور زمان شاہ کی مردانہ وجاہت اور روبدار شخصیت کے عشق میں اس حد تک پاگل تھی کہ اسکول ختم ہونے کے بعد وہ زمان شاہ کا پیچھا کرتے ہوئے اس یونیورسٹی تک آ گئی تھی۔ زمان شاہ نے ہمیشہ اسے محض ایک نادان اسٹوڈنٹ سمجھ کر نظر انداز کیا تھا، لیکن نینا کا جنون وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہولناک حسد میں بدل چکا تھا۔ تمہیں کیا لگا نینا، تم نقاب پہن کر میرے سامنے آؤ گی اور میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ زمان شاہ کی آواز میں غراہٹ تھی۔ میں کیا کرتی زمان؟ نینا پاگلوں کی طرح چیخی۔
میں آپ سے محبت کرتی ہوں، سالوں سے آپ کے پیچھے پاگل ہوں، لیکن آپ نے کبھی مجھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں، اور اس پینڈو گاؤں کی معمولی سی لڑکی کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اور لڑکی آپ کے اتنے قریب آ جائے۔ میں نے فریال کو لاکھوں روپے دیے تھے۔ نینا کے اس اعتراف پر معصومہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نینا روتے ہوئے آگے بولی، میں نے فریال کو پیسے دیے تھے کہ وہ اس لڑکی سے حقیقت پوچھے تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کے اور معصومہ کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے یا نہیں۔ فریال نے پیسوں کے لالچ میں آ کر اس کی ویڈیوز بنائی اور مجھے دیں، اور جب مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو میں نے فاخر کو پیسے دے کر معصومہ کو یہاں اغوا کروایا تاکہ میں اسے ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے ختم کر سکوں۔ انسپکٹر، لے جاؤ اس عورت کو میری نظروں کے سامنے سے۔ زمان شاہ نے پیچھے مڑ کر سرد لہجے میں حکم دیا۔ زمان، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ نینا گڑ گڑائی۔ تمہارا وہ ساتھی فاخر پہلے ہی پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے نینا، زمان شاہ نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ تم دونوں پر میری بیوی کو اغوا کرنے، اس کی جان لینے کی کوشش کرنے اور بلیک میلنگ کی دفعات لگیں گی۔ اب تم زندگی میں کبھی کسی بھی ادارے میں پڑھ نہیں سکو گی۔ تمہارا داخلہ، تمہاری کیریئر، تمہاری زندگی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑے گی۔ پولیس نے نینا کو ہتھ کڑی لگائی اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ گودام کے باہر اب صرف پولیس کی گاڑیوں کی دور جاتی سائرن کی آوازیں رہ گئی تھیں۔ زمان شاہ نے گہرا سانس لیا اور فوراً معصومہ کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی جیب سے چاقو نکالا اور ایک ہی جھٹکے میں معصومہ کی رسیاں کاٹ دی۔ رسیاں کھلتے ہی معصومہ نے نڈھال ہو کر خود کو زمان کے مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ زمان شاہ نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط گھیرے میں لیا اور اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بڑھے۔ پورے راستے انہوں نے معصومہ سے ایک لفظ نہ کہا، بس گاڑی کی تیز رفتار تیز رہی۔ جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو رات کے سائے مزید گہرے ہو چکے تھے اور باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ زمان شاہ معصومہ کا ہاتھ تھامے اسے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے کر آئے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی انہوں نے معصومہ کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ معصومہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی سرمئی آنکھیں اٹھا کر زمان شاہ کو دیکھا۔ زمان شاہ کے چہرے پر اس وقت غصہ تو غائب تھا، لیکن ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ ان کے لبوں پر کھیل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ معصومہ کے قریب آئے۔ معصومہ اس کے اس بدلے ہوئے انداز پر گھبرا کر پیچھے ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ زمان شاہ نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ معصومہ کے دائیں بائیں بیڈ پر ٹکائے اور اس کے خوبصورت معصوم چہرے پر جھک گئے۔ تو بیگم صاحبہ، زمان کی بھاری آواز معصومہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ گودام میں تم اس لڑکی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ معصومہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ اس کا گورا رنگ شرم کے مارے گلابی ہونے لگا۔ وہ شرمندگی سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ میں نے کیا کہا؟ وہ ہکلا کر بولی۔ تم کہہ رہی تھی کہ تم پروفیسر زمان شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہو اور میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زمان شاہ نے شرارت اور بے پناہ محبت سے اس کی ناک کی نوک کو چھوا۔ بڑا پکا دعویٰ تھا تمہارا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے میں تو اب تک صرف تمہاری ڈوریاں اور زپ ہی بند کرتا آیا ہوں۔ یہ اتنی بڑی خوشخبری تم نے خود سے کیسے تخلیق کر لی؟ وہ تو میں اسے جلانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ معصومہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور معصومیت سے صفائی دینے لگی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ اچھا، تو میری غیرت مند بیوی کو مجھ پر اپنا حق جتا کر اچھا لگا۔ زمان شاہ کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سر پلیز دور ہٹے نا۔ معصومہ نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اب سر نہیں معصومہ، اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تم نے جو دعویٰ دنیا کے سامنے کیا ہے اب مجھے اسے سچ بھی تو کرنا ہے۔ اس کی اس بے باک بات پر معصومہ نے شرم سے اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، لیکن زمان شاہ نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے اوپر اٹھایا۔ معصومہ کی دودھیا رنگت اس وقت حیا کے سرخ رنگ میں نہا چکی تھی اور اس کے کانپتے ہوئے گلابی لب زمان شاہ کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ زمان شاہ مزید ایک پل کی دوری برداشت نہ کر سکا۔ وہ آہستہ سے نیچے جھکے اور انتہائی شدت اور گرم جوشی سے اپنے لب معصومہ کے لرزتے ہوئے لبوں پر رکھ دیے۔ معصومہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے زمان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے بھینچ لیا۔ زمان کے لمس میں اس وقت معصومہ کو کھو دینے کا خوف اور اسے پا لینے کا جنون دونوں شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس سے الگ ہو کر معصومہ کی گردن پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے۔ معصومہ کے منہ سے ایک مدھم سی سسکی نکلی اور اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ زمان شاہ کے مردانہ اور کسرتی ہاتھ اب معصومہ کی ملائم کمر پر رینگ رہے تھے، جہاں ان کی انگلیوں کے پور اس کی کمر پر موجود اس سیاہ تل کو چھو رہے تھے۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشوں پر ایک مدھم موسیقی بجا رہی تھیں۔ معصومہ کا خوف اب آہستہ آہستہ ایک گہرے سکون میں بدل رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زمان شاہ کے اس حصار کے اندر وہ دنیا کی سب سے محفوظ اور محبت کی جانے والی عورت تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ